Good morning, my dear students. Today I will talk hash diagram. So, hash diagram. A hash diagram is a graphical representation of a partially ordered set in which each element is represented by a dot. That means कि फर्स्ट हमें पार्शियल ऑर्डर सेट होगा कि A is any set and R is any relation, then relation should be partially ordered relation. So in which element is represented by a dot. Its immediate successor are placed above the node and connect it by straight line segments. That means suppose there are 4 nodes, so A, B, C, D. So nodes are, suppose B is immediate successor of A, then B and A are connected by a straight line. The diagram of partial order relation can be converted into a hash diagram by using the following steps. So हमें अगर कोई पहले एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन गिवन है तो सबसे फर्स्ट हमें उसका डायग्राम बनाना होगा और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा हैश डायग्राम में. सो हैश डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें यूज करनी होती है. जो स्टेप्स ये हैं कि स्टेप फर्स्ट, डिनोट द वर्टाइसेस बाय डॉट इन द प्लेस ऑफ सर्किल्स. मतलब हैश डायग्राम में हम सर्किल से हम जो एलिमेंट्स थे जिनको हम सर्किल से डिनोट करते थे उनको हमें हैश डायग्राम में डॉट से डिनोट करना है. अब क्योंकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और एंटीसिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है. तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि लूप्स होंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, ए से ए में रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव. सो लूप्स होंगे हर नोड पर, तो वो लूप्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा. डिलीट ऑल लूप्स फ्रॉम द वर्सेस सिंस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लूप एट एवरी वर्टेक्स इज ऑब्वियस. और हमें क्या करना होगा, ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी मीन्स ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी. सो ए रिलेटेड टू सी जो ट्रांजिटिविटी वाली जो एरो होगी उसको भी हमें रिमूव करना होगा. डिलीट ऑल एजेस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द ट्रांजिटिविटी. अगर 3 एलिमेंट्स अगर वहाँ 3 पेयर अगर ट्रांजिटिविटी के दिखाएं तो तीनों के तीनों हमें ब्लू एरो को डिलीट करना होगा. ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ ऑल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विद ऑल एजेस पॉइंटिंग अपवर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव एरो फ्रॉम द एजेस. हमें एरो को हमें रिमूव करना होगा और जो नोड्स होंगे उनको हमें अपवर्ड फॉर्म में डिनोट करना है. सो these are the some example. The hash diagram for the relation of divisibility on 1 2 3 4 5. This one divisibility means A divisible by B, A is divisible by B. So this one is the hash diagram. So first make the partial order relation. So partial order relation, 1 related to 1, 2 related to 2, 3 related to 3, 4 related to every element is divisible by itself. And next more some relation, partial order relation, then make the diagram, then convert it into hash diagram by the above given steps. Here one more example. Draw the diagram and hash diagram of the poset SR where S is equals to 1 2 3 and S is the set and R is the relation which is the partial order relation poset. Given that poset, so R is the partial order relation, this one. So there are 3 elements. So reflexivity, so 1 1 2 2 3 3 is necessary.
compulsory to present in the relation are. So this one. Next, transitivity, 1 is related to 2, 2 is related to 3, then 1 is related to 3. Next, antisymmetric. Antisymmetric means A related to B, but A is not equal to B, then B is A related to A. So A related to B, 1 is related to 2, but 1 is not related to 2. So then 2, 1 is not related to A. So there are no 2, 1. If A related to B and A is not equal to B, then BA does not belong to R. So here, suppose 1, 2. 1 related to 2, but 1 is not equal to 2, then 2 is not related to A. 1, sorry. So here this one is the diagram of this relation, which is the partial order relation. 1, 1, there are 3 nodes. 1, 1, so this one is 1, 1, 2, 2, 3, 3. Next, 1, 2, 1 is related to 2, so this one is represented by 1 is connected by 2, 2 is connected by 3, and 1 is connected by 3. So first, 3 dots of 1, 2, 3, upward, 1, 2, 3. Next, remove the all loops, so this one is loops is removed. Next, remove the transitivity edges. So this one edge is removed. So 1 is removed, 2, 2 is removed, 3. 1 is connected by 2, 2 is connected by 3, and this one is. So this one is the Hess diagram of these relations. Next, some important terms which needs to examine the lattice. So first, upper bound, if S this less than equal to be a poset, that means this one is the only relation, not less than equal to only read, but less than equal to means does not meaning the comparing. This one is only relation. So if S less than be a poset and AB is element of S, then an element C belongs to S is said to be upper bound if of AB, if A is related to C and B is related to C. मतलब अगर किसी भी सेट का अगर हम अपर बाउंड निकालना है और कोई दो एलिमेंट ले लें हम, तो हमें क्या करना है कि ए अगर सी अगर अपर बाउंड है इसका, तो और ए बी अगर कोई दो एलिमेंट, हमेशा ध्यान रखना एलिमेंट्स के ऊपर, दो एलिमेंट्स के ऊपर कंपेयरिंग कर कि ए रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी, देन हम कैन से दैट कि सी इज द अपर बाउंड. यहाँ रिलेशन कुछ भी हो सकता है. ऐसी लीस्ट अपर बाउंड, दिस वन इज द लीस्ट अपर बाउंड. So सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम. सो लीस्ट अपर बाउंड, अगर कोई भी एलिमेंट अगर लीस्ट अपर बाउंड होगा उस सेट का ए बी के लिए, तो उसके ए इज लेस देन एल, बी इज लेस देन एल. दैट इज अगर ऐसा है तो एल इज द अपर बाउंड ऑफ ए बी. इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एल डैश बिलोंग्स टू एस, कि ए और बी अगर एल डैश लेस देन है तो एल भी लेस देन होना चाहिए. L dash is that is the L is the another upper bound of AB, then L dash is also upper bound of L. Lowest bound कि ये कंडीशंस का अगर सेटिस्फाई, अगर B D अगर लोअर बाउंड होगा तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई होने चाहिए. सेम थिंग हम इन PM दैट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है maximal element. An element A in the poset S relation is called maximal element. A maximal element होगा इस सेट के अंदर, इस पोसेट के अंदर, if there does not exist any element B belongs to L such that A is less than B. तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उससे B से लेस देन हो. मतलब मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट होगा अगर उससे कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, या ए ग्रेटर देन बी होगा कि उससे कोई भी एलिमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए. यस, ये रिलेशन का सिंबल नहीं है, ये एक्चुअल में ही है, कंपैरिजन है.
कि कोई भी एलिमेंट है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट कब होगा, जब कि उससे कोई भी हमें बड़ा एलिमेंट नहीं मिले उस सेट के अंदर। सेम थिंग मिनिमम एलिमेंट क्या होगा कि कोई भी एन एलिमेंट ए in a poset, this is called the minimum element if there does not exist any element b belongs such that b is less than a। मतलब उससे कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट मिनिमल होगा तो उससे कोई भी छोटा एलिमेंट उस सेट में नहीं होना चाहिए। मैक्सिमल में तो क्या होना चाहिए, उससे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, और मिनिमल में उससे कोई भी छोटा एलिमेंट उस सेट में नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट एलिमेंट में यहाँ स्ट्रिक्टली है, यहाँ भी स्ट्रिक्टली है। ग्रेटेस्ट में ये होता था कि वो उससे उसके इक्वल और उससे छोटा, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट में क्या होगा कि उससे के इक्वल और उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बराबर तो हो लेकिन उससे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था, मैक्सिमल में यही डिफरेंस है। द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज यूनिक इफ इट इज एग्जिस्ट। सेम थिंग लीस्ट में कि ए से अगर कोई मिनिमम एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट होगा किसी सेट का, तो उससे कोई बड़ा ए लेस देन इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। यहाँ इक्वल वाला साइन चल जाएगा, यहाँ इक्वल वाला साइन नहीं चलेगा। So there one is the example. Let S is there are some elements and R be the relation. Relation is one way divides on the set S, then S is a poset. So S is a poset. Then S is a poset. So find the following: lower upper bound of 3 and 7, greatest lower bound of 15 and 35, greatest and least element of S. So this one is the diagram of this relation S1 3. So first लोअर बाउंड ऑफ 3 और 7, 3 और 7 के हमें लोअर बाउंड निकालने। तो सबसे पहले लोअर बाउंड हम 3 के निकालें। सो 3 के जो लोअर बाउंड्स होंगे, लोअर बाउंड निकालने, लोअर अपर बाउंड ऑफ 3 और 7। सो अपर बाउंड, तो लोअर अपर बाउंड निकालने, दैट मीन सबसे पहले हम अपर बाउंड निकालें। 3 के अपर बाउंड कौन कौन से होंगे, और रिलेशन ध्यान रखिए, डिविजिबिलिटी 3, 15, 21, 35 and 105 is the upper bound of, and this one is the division 3 5 is 15, 3 7 is 21, 3 but 35 is not, and 105 and 3 itself to be less than equal to upper bound. Upper bound of 7, 7, 21, 35 and 105. So upper bound of 3 and 7 common upper bound 21 105, but 21 divisible by 105, so only 21 is the lower upper bound of 3 and 7. Same thing, greatest lower bound of, so first find lower bound 15, lower bound of 15 135, 35, lower bound of 157 and 35 is also, so lower bound of 15 and 35 1 and 5, but done 1 divisible by 5, so 1, since 1 divided by 5, so 5 is the greatest lower bound of 15 and 35. Same thing, greatest element, all elements should be less than, so 105 is the ऐसा एलिमेंट इससे सारे एलिमेंट, और मिनिमल एलिमेंट कौन सा होगा 1, क्योंकि इससे सारे एलिमेंट सब बड़े हैं। सो दिस वन इज दी, ऐसे ही हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।